Good evening, Namaskar, and a very warm welcome to Times Now's Election Yatra. We're joining you live from 1090 Chauraha in Lucknow. It's a beautiful city. It's the center of power. The politics that's playing out in Uttar Pradesh, that's what we're going to be discussing today. Political parties fighting it out. The BJP wanting to return with the same numbers that it had in 2019. But the UP ke ladke, Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav are together this time. What's the impact that it's going to have on the ground? That's what we've been speaking about. Today as well, we're speaking to voters to find out what is it that they think of the politics that's playing out. Later in the episode, we're also in Sultanpur, where we speak to Menaka Gandhi as well as the voters. There, remember, a lot of voters have also been speaking about how it's not about religion, it's about who the MP is. What is the Modi-Yogi factor? We're going to be speaking about that as well. But let's begin with the big story of the day that has created ripples across the country, shockwaves across the country with the details that have come in the complaint that has been given by the Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Swati Maliwal. In her complaint, she has detailed the horror that she had to go through in the Delhi Chief Minister's residence. An official complaint has been filed, and today visuals also came in of Swati Maliwal herself going in for medical examination at the AIIMS hospital. She was looking visibly upset, very, very uncomfortable. The complaint really gives out the shocking details that were not known. Until now, remember, a lot of questions were being raised. What has happened? Is it a political fallout? Is it more? Now, in the police complaint, Swati Maliwal speaks about how she was assaulted, slapped several times by the PA of the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. But amid these horrific details that have come in, it also exposes those politicians, those leaders who have been speaking about Nari Shakti, those who have been speaking about women's safety. Akhilesh Yadav, for instance, when he was asked about it, remember, Arvind Kejriwal, he was campaigning when details of this horrific incident came to light. And Arvind Kejriwal has still maintained absolute silence. What's even more shocking is what was the reaction of Akhilesh Yadav. When he was asked about it, he said that there are bigger issues in the country that need to be discussed. And is a reaction of Priyanka Gandhi as well, known for her campaign, Ladki Hoon, Lad Sakti Hoon. Did she speak up for a woman MP who has been assaulted? She herself saying she has been assaulted and slapped several times. Did she speak up or not? When she was asked about it, Priyanka Gandhi Vadra as well didn't have much to say or slam the Delhi Chief Minister. Listen in to the reactions that have come in from both Kejriwal, his silence, Akhilesh Yadav as well as Priyanka Gandhi. अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। अरविंद जी स्वाति, देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। So what do the voters think about this? Do these naras stay just a nara and nothing else in reality? Remember, in Uttar Pradesh in particular, law and order is also one of the biggest issues for the people. Women's safety, we've been speaking to the voters. Many of the voters have been speaking about women's safety and how it's one of the biggest issues for them when they cast their vote.
Swati Maliwal issue has shocked the entire nation. Let's speak about what this means on the ground as well. We speak to the voters on what they think. We'll get to that in just a moment. But speaking about the reactions that have been coming in, let's open this up. Debating today with us, Alok Awasthi, spokesperson of the BJP, Pradeep Singh, leader of the Congress party, as well as Sumaya Rana, spokesperson of the Samajwadi Party. I want to begin with Sumaya. As a woman, this is an issue that has shocked the entire nation. This is a Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP, sitting MP. This is the Delhi Chief Minister's residence, and the details of the complaint are very, very horrific. Why aren't we seeing a bigger condemnation from the India Alliance leaders? Actually, see, okay. This incident, or you can say accident, it is really shocking for the whole nation. It is fact. And our president said there are much bigger issues than this. This is also a very fact. But I just wanted to say, there are bigger issues in women's safety. एवरीवेयर इन द नेशन विमेन हर जगह आप खुद देख रही है कि कहां से महिलाओं के लिए कैसी कैसी खबरें आती हैं और उसी खबरों की एक कड़ी स्वाति मालीवाल जी की भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि व्हेन द इलेक्शंस आर एट द डोर स्टेप, इस तरीके की बातें निकल के आना और इनके फैक्ट्स पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। पहले इनके फैक्ट्स चेक करो और अगर सचमुच में ऐसा कुछ हुआ है स्वाति मालीवाल जी के साथ तो यकीनी तौर पर। लेकिन आप तो अब उन पर सवाल उठा रही हैं कि ये सचमुच में हुआ है कि नहीं। प्रदीप जी, यहाँ पे प्रियंका गांधी हुई है, उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ ऐसा नारा लगाया था। उन्होंने कहा था कि हम नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन इस बात पे चुप्पी क्यों है? अगर हम नारी शक्ति की बात आदरणीय प्रियंका गांधी जी करती हैं तो हमने वाकई, चाहे वो उन्नाव का मामला रहा हो, चाहे हाथरस का मामला रहा हो, या फिर जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जी का मामला रहा हो, हर मुद्दे पे चाहे प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी हमने डट के लड़ाई लड़ी और इन सवालों को उठाए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, बार बार चाहे वो हाथरस की बेटियों का मामला रहा हो, चाहे उन बेटियों का मामला रहा हो जिन्होंने लेकिन किस मुद्दे पे बात करेंगे, वो राजनीति देख के बात करेंगे कि इतना बड़ा इशू है ये, गौरव बढ़ाया। उन्होंने अगर आपके सांसद पर आरोप लगाया तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्हें संरक्षित करती नजर आएगी। उन्नाव की बेटी अगर आरोप लगा रही है और संघर्ष कर रही है तो आप पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को संरक्षित करती नजर आएगी। और इतना ही नहीं, उसके पिता की तो जुडिशियल कस्टडी में उसका मर्डर हो जाता है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी केस पे बात कीजिए ना। ये सवाल तो ये भी है, इस देश में जहाँ भी महिला उत्पीड़न हो रहा है वहाँ प्रियंका गांधी खड़ी है, वहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो वहाँ खड़ी है तो फिर इस मुद्दे पे क्यों नहीं खड़ी है उनके साथ? वो तो कह रही है कि ये उनके पार्टी का मामला है, उसमें जब हो जाएगा सॉल्व उस पर तब बात करेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर अगर एफआईआर होगी, विवेचना होगी, कुछ चीज निकल के तो आने चाहिए। केवल आरोप एमपी के ऊपर असॉल्ट हुआ है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर हो रहा है, ये आप कह रहे हैं ये पार्टी का मामला है? आलोक जी, ये पार्टी का मामला है। सांसद जी पे तो आरोप ही नहीं, उसके खिलाफ तो धरने हो रहे थे। पूरे देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, उन्होंने धरने दिया और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। क्या ये पार्टी का मामला है कि आम आदमी पार्टी का मामला है? ये देखिए, यह बेहद शर्मनाक और बेहद घटिया हरकत हुई है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर उन्हीं की पार्टी के सांसद के साथ, जो उन्हीं की पार्टी की सक्रिय सदस्य रही हैं, जिनका बीजेपी से एलआई से कोई लेना देना नहीं है, 9 वर्ष तक वो महिला आयोग की अध्यक्ष रही है और राज्यसभा भी आम आदमी पार्टी ने बनाया है, और वह स्वयं आरोप लगा रही है उनके जो नंबर 2 के जो उनके सांसद है संजय सिंह, वो उसको कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ उनके साथ बदसलूकी और बदतमीजी हुई है और पार्टी जवाब देगी। लेकिन हम यहीं लखनऊ में देखते हैं, लेकिन बात बदतमीजी की भी तो नहीं है ना? उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया है, उनको तो कपड़े फाड़े गए हैं, जो इस तरह से हमने उनकी एफआईआर पढ़ी है कि उनके स्तनों पे मारा, उनको पेट पे मारा, इंसिडेंट हो गया, बदतमीजी कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी का शुरू से यह नजरिया रहा है कि उनको झूठ बोलना है, दुनिया भर को नैतिकता का पाठ पढ़ाना है, आरोप लगाना है, और जब स्वयं नैतिकता की बात आती है तो पर्दे के बीच छुप जाना है। लखनऊ का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अखिलेश यादव जी बैठे थे और अरविंद केजरीवाल थे। कई पत्रकारों ने सवाल किया कि आप स्वाति मालीवाल पर जवाब दीजिए, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो मीडिया को फेस करते। उन्होंने जो है अखिलेश जी की तरफ उसको खिसकाया और अखिलेश जी कहते हैं कि इसको बाद में देखा जाएगा, यानी कि महिला अस्मिता और महिला इज्जत की कोई बात ही नहीं है। ये वही पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसके नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बच्चों से गलतियां जो होती है रेप केस करने के बारे में जब उन्हें सवाल पूछा गया था, तो महिलाओं के प्रति दोहरा रवैया कि अगर उनकी पार्टी के में शिकायत हो रही है, उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सदस्य शिकायत कर रही है, ये बहुत ही गंभीर है। इसमें कौन सी परिस्थिति हो रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर सारी उंगलियां उठ रही है।
साथ ही साथ इंडिया अलायंस के सभी घटकों पे वोट कर रही है। क्योंकि अलायंस पे भी कांग्रेस सवाल बोल रही उठता है, ना क्योंकि ये बदला बहुत कोई गंभीर विषय है जैसे इन्होंने कहा। और अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं ये मुद्दा नहीं है, हमारे और भी मुद्दे हैं देश में, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? विमेन सेफ्टी का मुद्दा नहीं है? मैम, पहली चीज तो ये नहीं कहा गया कि ये मुद्दा नहीं है, ये कहा गया ये मुद्दा है, लेकिन और भी बड़े मुद्दे हैं। मैं उन मुद्दों पर भी थोड़ा रोशनी डाल देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी और प्लस उनके यशस्वी प्रधानमंत्री 82 दिन तक सिर्फ चुप थे। मणिपुर में जब नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया जा रहा था, उस वक्त ये चुप्पी प्रधानमंत्री की क्या कहती है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। हाथरस में रातों रात पेट्रोल डाल के एक दलित बच्ची को जला दिया जाता है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। इसके अलावा जो बच्चियों को अनाथ आश्रम में जो उनके साथ खेल रचा जा रहा था, वो जवाब देना होगा। और एक सांसद, और मैं उस पर भी आ रही हूँ, मैं स्वाति मालीवाल पे भी आऊंगी, मैं स्वाति मालीवाल पे भी आऊंगी। अगर आप ये सवाल उठा रहे हैं, उन पर तो बीजेपी को भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उठाया गया था जब सरकार ने बहस करी, कांग्रेस हाईकोर्ट कर चली गई। अच्छा, आपने जो बात की, एक मिनट रुक जाइए, आपने जो कहा इन्होंने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। अगर बीजेपी कह रही है कि आप विमेन सेफ्टी में राजनीति देखते हुए बस बात कर रहे हैं, तो इनके सवाल का भी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में हुआ है, हाथरस में है, तब बीजेपी कहाँ थी? मैं जवाब देता हूं। इन्होंने उन्नाव की बात करी है। उन्नाव का जो कल्प्रेट था उसके खिलाफ बीजेपी ने सीबीआई इंक्वायरी कराई, सजा कराई, आज आजीवन कारावास उस आदमी को है। मैं पूछ रहा था मणिपुर के अंदर जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो शर्मनाक घटना थी, उसमें गृह मंत्री स्वयं वहां पर गए, गृह राज्य मंत्री वहां कई दिनों तक उन्होंने कैंप किया है। और मणिपुर की घटना जो है वह जातीय संघर्षों की है और वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन हम महिलाओं के प्रति सम्मान के प्रति हम जो है समर्पित है और हमने कार्रवाई कराई है। इनसे पूछे स्वाति मालीवाल या राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ के अंदर कि कांग्रेस के दफ्तर के अंदर सजा बदतमीजी हुई है। क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा सामने आई, क्यों नहीं खड़गे जी सामने आए, क्यों नहीं राहुल गांधी सामने आए, क्यों नहीं अखिलेश यादव सामने आते हैं? और आज जब महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात होती है तो प्रियंका गांधी वहां पर चली जाती हैं, लोगों से मिलती हैं। यहाँ जब एक एमपी के साथ ऐसा हो रहा है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर के घर में ऐसा कुछ हो रहा है, मुख्यमंत्री के घर में ऐसा होते हुए, क्या अलायंस के वजह से वो नहीं जा रही है? क्या अलायंस की वजह से वो कुछ नहीं बोल रही है? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? एक सवाल। दूसरी बात, एक एनसीआर होने के बाद गिरफ्तारी, अगर आईपीसी की धारा की जानकारी इनके पास हो तो जानकारी होनी चाहिए जिन धाराओं में एफआईआर हुई है उन पे गिरफ्तारी, तुरंत गिरफ्तारी की स्थिति नहीं बनती। नंबर 2। नंबर 3, जिस दिन इंसिडेंट होता है उसके तीसरे दिन अगर पुलिस एफआईआर कर रही है तो गलती किसकी है? पुलिस किसके? कंप्लेंट तो उन्होंने आज दिया है। 3 दिन बाद देखिए, देश को भ्रमित मत करिए। जिस दिन उसी दिन उन्होंने फोन करके सूचना दी पुलिस को, 3 दिन बाद वो सूचना रजिस्टर्ड होती है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। देखिए, झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। झूठ बोलने का अधिकार केवल देश के प्रधानमंत्री आ चुकी है, तब प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी ने कुछ क्यों नहीं कहा? को झूठ बोलने का अधिकार नहीं देते। आप मुख्यमंत्री के घर के अंदर अत्याचार होता है, मेरा जवाब आने दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोई भी उस महिला के साथ खड़ा नहीं होना चाहता है जो इनके सहयोगी दल के साथ की महिला है। ये बेहद शर्मनाक है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर एक मिनट रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि जब एफआईआर हुआ तब हम उसका इंतजार कर रहे थे, तो दूसरे केसेस में आप ऐसा ही करते हैं कि रुक जाते हैं कि पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद हम बात करेंगे उस पर? मेरा आरोप है कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दबाव था, इसलिए 3 दिन बाद एफआईआर हुई, मेरा आरोप है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात हम ये कह रहे हैं विवेचना हो रही, पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? नंबर 2 सवाल। तीसरी बात ये हम ये कह रहे हैं कि जब अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने राणा जी के सवाल पर कहा कि मणिपुर की घटना जातीय संघर्ष, यानी कि जातीय संघर्ष पर महिला का चीरहरण करने की अनुमति इनके द्वारा प्राप्त है और यह समर्थन कर रहे हैं। यही हम इतना निंदनीय बयान है। हम ये कहते हैं कि ये महिला विरोधी सरकार है, हम ये कहते हैं कुलदीप सिंह के साथ खड़े हुए लोग हैं, हम ये कहते हैं ब्रजभूषण के साथ के लोग हैं। अच्छा, जो आपने बात की है, जो आपने बात कही है, वो जो अखिलेश यादव, आपने कहा कि दूसरे जो मुद्दे हैं वो बीजेपी से हम पूछ लेते हैं, उन्होंने अपना जवाब दे दिया है। लेकिन क्या अगर एक कोई इंसिडेंट हो जाता है उस पे
कुछ कहने से पहले आपको बीजेपी का एक रिएक्शन चाहिए हर एक इंसिडेंट पे, उसके पहले बात नहीं हो सकती है। जब अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पे हैं, अखिलेश यादव उनके साथ हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप है, क्या वो उसके बारे में नहीं बात कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, आपको कैसे पता कि उस पर बातचीत नहीं हुई होगी, लेकिन फिर मैं उसी बात पर आ रही हूँ। इन सारी चीजों के फैक्ट निकल करके आएंगे और उस पर पूरी कार्रवाई भी होगी, इसका मुझे यकीन है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जब आके दूध का धुला होने का नाटक करती है, मेरा सवाल उस भारतीय जनता पार्टी पर है जिसके प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं 82 दिनों तक, और फिर आप बात कर रहे हैं कि एक विशेष जाति के लोगों के साथ, तो ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं। ये बहुत ही गलत दोहरा रवैया है। एक तरफ तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति पर आरोप लगे तो तुरंत उसको फांसी पर चढ़ा दो, कोई जांच नहीं होगी, वहां पर वो कल्प्रिट है। लेकिन उसके बावजूद जब समाजवादी पार्टी के किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है, या आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है, या कांग्रेस पर लगता है, तो नहीं, पहले हम जांच करेंगे, पहले देखेंगे इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं पर इसमें ये नहीं है, कहीं पर वो नहीं है। यूपी में क्या मायने रखता है और क्या लोग आपको माफ करेंगे? ऐसी जो आप बयान करते हैं आपके लीडर्स, उस पे सिद्ध हो चुका है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप सिद्ध हो चुका है। दूसरी तरफ विवेचना जारी है। झूठ बोलना बंद करो। न्यायालय पे आरोप लगा रहे हैं आप। केजरीवाल का अभी जो इंसिडेंट आया है, जो डिटेल्स आए हैं केस में, इनका विश्वास नहीं। अगर ऐसा है तो आपने जब इतना कुछ बोला है तो फिर इलेक्शन का मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? आरोप नहीं, आप आरोप महिला अस्मिता के ऊपर समाजवादी पार्टी हो, और दूसरी तरफ शुरू से महिला मंत्री का हाथ कभी रहा है, जांच हुई है, जेल लोग गए इनके यहाँ से। और अखिलेश यादव के पिताजी, उनको स्वयं उनका बयान था कि बलात्कार के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। वाली बात कुलदीप सिंह पे नहीं बोलेंगे, आप पे नहीं बोलेंगे। issues here continue. All right, so the issues here continue. This is going to be on the voters' mind as well, especially in Uttar Pradesh, where law and order has been one of the biggest issues. Women's safety is going to be on the minds, especially of the women voters across Uttar Pradesh. This is an incident. It's for the voters to decide. Has there been hypocrisy from certain leaders on the issues of women's safety, speaking up only for politics, or what do the voters think? That will be known on the 4th of July. We're joining you live from Lucknow. On the way here, we stopped at Sultanpur. It is a constituency that's very, very close to two constituencies that are seeing a heated battle, Amethi as well as Rai Bareli. The sitting MP from Sultanpur is Menaka Gandhi. Not many would remember that she had also contested in 1984 from Amethi. She had contested against Rajiv Gandhi, which was her foray into politics. A lot has changed over the last several decades. She is now an 8-time MP seeking a re-election for a record 9th time. But the politics in Sultanpur is very, very different from the wave that you're seeing across Uttar Pradesh. Is there a Modi-Yogi wave? Is there a Ram Leher? Or is Menaka Gandhi practicing her own brand of politics? What is the impact that it's going to have in the constituency there? Against Menaka Gandhi is the SP and the BSP. We speak to the 8-time MP Menaka Gandhi, who speaks about a life has changed. She spoke about the Amethi battle and also an interesting anecdote from the Gandhi family, from a time in the Gandhi family that not many know about. Listen in to this conversation. Campaign trail in Sultanpur, we are joined by the sitting MP Menaka Gandhi, MP for 8 terms, a warrior on her personal front over the last several years, a very, very vociferous animal activist. Thank you so much for joining us. You're somebody who wears several hats and, you know, you've donned them in style. And we're seeing a very traditional style of politics here. As we came here early in the morning, in fact, Menaka Gandhi ji was speaking to voters with very local and hyper-local issues. How is the campaign going? Few days to go for the elections. It's going okay. You know, I have no ability to predict anything, so I just do my best. But I'm sure speaking to the voters, you're getting a sense of what the mood is like. And here in Sultanpur, the campaign seems to be completely different from how it is in the rest of the country. It seems to be, I mean, you know, your Menaka Gandhi brand of politics. What would you say for that? No, it's always been like that. Wherever I've been an MP, I concentrate on local issues. I keep in touch with thousands of local people. They're all encouraged to come and see me directly. And we sort out issues a lot, even while the election is going on. So it's different. We don't allow casteism. We don't even mention religion in any form. And we really don't get into any national issues.
The accusation that has come in from the BJP, from the opposition to the BJP is often that there's a lot of religion that gets mixed up. Here with the electorate as well, do you see or do you feel that people believe that, you are known as something else, but BJP is a party that may be mixed up in religion, so maybe we would not. How does that work? Well, so far I set the tone and the party works very hard, but they really haven't brought up the issues. I'm sure that the Ram Mandir issue exists in everybody's heart, and everybody's very happy that it's up. But it's not a factor in the vote. Not at all a factor. No. Not in your constituency. Not here, no. All right. I want to ask you, you spoke about Ayodhya, which is a few kilometers from here. There's also Amethi and Raebareli where big battles are playing out. And there's something very interesting that Smriti Irani ji also said recently when she said that, you had decided never to come into Amethi again. That was after you contested from there the first time. Would you want to speak about it? Because not many know. You contested from Amethi. Yes, that of course made history. Your first election there. No, it's not that I don't go into Amethi or anywhere else. I just don't campaign outside my constituency. Okay. Because here it's so intense all the time. And it's so low-key that it requires much more effort. See, it's very easy to get onto a stage and blabber on about national or so-called issues. It's much more difficult to go into a village, talk about them, talk about me. And I do that all the time. So I really don't have much time left over to go anywhere else. Pilibhit, you mentioned you have also been the MP there so many times. You called it your home. Varun Gandhi this time around being dropped by the party. Did that come as a shock, or were you aware that something like that could happen? Did you speak to the party leadership? No, I spoke to them, but they were going to do what they were going to do. So, you mentioned them as your family, Pilibhit, the people of Pilibhit. Varun Gandhi not contesting from there, you said nothing could have happened, so you didn't want to take it forward, the discussions from there. Was there a discussion that you had, or maybe in mind, that maybe he could contest as an independent? Because there were speculations as well that he could maybe join the SP or the Congress, go back to the cousins. Was that something that was discussed in the family, if you would like to tell us? It really was not. It really was not, because my seat came at the same time and I pushed off the same day. So from here, you've seen the morning. This has been like this since that day, and it will be like this till 9 o'clock at night. So I really have not, and my son is old enough and mature enough and bright enough to take his own decisions. And I'm sure he would not do anything that perhaps would not be good for India. And he himself is also actually known to be not aligned with the party, but somebody who has stood for the issues that he speaks for. He has always been like that. Would you say that's something that you also advised when he came into politics? What did you tell him, that this is how you should be? No, I don't have to tell anybody anything. People look, they learn through osmosis. So he probably saw me and then decided to stand for whatever he stands for. So that's how he conducts his life. Okay, so what next for him? Is that something that you have thought of or you have discussed with him, if you would like to tell us? No, I've thought of nothing. Nothing. And I'm sure he'll do very well in whatever he does. Remember, he's not leaving a party or anything. Every party has leaders who are not in parliament. It doesn't stop you from, assuming positions of responsibility or doing good for the country. So, members of parliament are just what? A handful. So what's the big deal? So there's no question of moving away from the party then? I don't know, darling. I'm going to know after the election is over. I don't think he'll go anywhere. Okay. But he'll have to fulfill his own destiny. Very strong words from a mother, and I'm sure this is what shaped him up as well when he was getting into politics. I want to ask you, there were questions about a reunion, maybe going back to the Congress. Would you say these are mere speculations? Just speculation. Do you see that happening, or, even if he wants to, or do you see that happening at all in any way? Would you want to depend on the power of, say, the Yogi government or the Prime Minister coming and campaigning here? Is that, of course, it would be welcome, I'm sure, but would you say that makes an impact in the constituency?
I'm sure it would. But nobody's come as yet. Why is that? I don't know. Would you say it's faith that you can, win the constituency on your own? Or do you think because your brand of politics is so different from the BJP's now current brand of politics, that's the reason? Or is there something more? No, beta. Nobody ever came to Pilibhit either for 30 years. So it's really, I think it's probably faith. We don't give anybody any trouble. It's a smooth, silent, gentle election. And it's always been like that with me. We don't take sides, we don't make enemies. We just put out our own, spiel, if you call it. And it's up to people to see. I can see in the high-pitched elections that are taking place outside, you're somebody who's so mild-mannered and, speaking to the electorate. You know that this is your strength, speaking to the people. Over the last several years, I'm sure in politics, even otherwise as well, there have been a lot of challenges. How have you remained yourself over the last so many years? I can see that, you're somebody who started off so many years ago. You remain the same now. Absolutely. The thing is, if you're going to do something in life, then you have to fit your own principles. So if you can't keep changing, and I can't. There are things that I stand for and things I want to do, and that's the only way I can run my life. Okay. So when you said that you will never be in the Congress party, it's a decision that you still stick by what you see in the country, the changes. Do you think Congress party has changed as well? Or it was the same party, the same family that you had left behind so many years ago? I was never in the Congress, darling. I left at the age of 25 or 26. So really, the Congress party has not evolved. It's the same people doing the same things. Every party needs two things, or one of two things. One is a big idea, and the second is a big leader. Now the Congress party needs to get one or the other. They don't have any as of now. So far, maybe not. In fact, many during their campaigns or even otherwise speak about you, as they say that when they want to take on the Gandhi family, they say that if the Gandhi family can do this to Maneka Gandhi, then imagine what they can do to the electorate. What do you say to that? It's a bit hyper. It's a bit hyper. The Congress party did nothing to me. So the Gandhi family also... No, it's not, this is rhetoric. And rhetoric is always very boring for me. But people say what they say. But do you ever, within your party as well, when there is a talk, do you tell them that, don't talk about my life like that? Or, why bring this up? No, I don't. Nothing at all. And nobody speaks like that in front of me. I'm very much an individual, and I don't think anybody in this constituency is even aware of the Gandhi part or any other part, In fact, I keep telling them that you better tell them what my name is, because I hope they're not going to go look for Mataji on the ballot paper. Seriously, when you go around, you'll see that. Okay. So your identity has become with that. Okay, all right. Thank you so much for speaking to us. I'm sure there are a lot of voters who are still waiting. So we caught up for the little time that we could. A lot more to go. Thank you so much and all the best for your campaign as well. Let's go around speaking to the voters as well and find out what's the mood on the ground. So we are in Sultanpur constituency. Let's speak to the voters and find out what are the key issues for them. Maneka Gandhi is a sitting MP from here. Is it the local, hyper-local issues that she speaks of? Is it going to be Ram Leher that's going to be one of the biggest factors? SP, BSP, what are their chances here? Let's find out. We've come to this chai shop here where we can see a lot of people waiting here, waiting to speak on these issues as well. They were here as we caught up with them and told them that we'll be speaking to them and what are the key issues for them. आप यहाँ पे वोटर हैं, यहाँ पे की मुद्दे क्या हैं? यहाँ के जो मुद्दे थे, श्रीमती मेनका संजय गांधी ने उस मुद्दे को काफी खत्म कर दिया है। और श्रीमती मेनका संजय गांधी जी ऐसी नेता हैं, बिना भेदभाव के जात धर्म के काम करती, सबका काम करती हैं। उन्होंने कभी नहीं पूछा आपने हमको वोट दिया है या नहीं दिया है, आप किस जाति के हैं। कोई भी पहुंचता है तो उसके लिए तुरंत फोन लगा देती हैं, अधिकारी से बात करती है, उसकी तुरंत समस्या समाधान हो जाती है। और मेनका गांधी जी ऐसी नेता हैं, जब से सांसद बनी है तब से लगता है कि सांसद की भी इतनी बड़ी पावर होती है, इसके पहले पता ही नहीं चलता था। हमारी सांसद जी सबसे बड़ी बात यह है
कि महीने में 7 दिन यहाँ रहती हैं, 15 दिन पे 3 दिन रहती हैं और सुबह बैठती हैं 8 बजे और 9-10 बजे तक समस्या देखती हैं। फिर गाँव में जाती हैं, गाँव में सबसे समस्या सुनती हैं। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि हमसे ऐसी माँ मिली है, जैसे माँ जो है अपने बेटे को प्यार करती है, ऐसे माँ जैसी सांसद मिली। सबसे बड़ी बात ये है। हम क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामकेश यादव जी। तो यहाँ पे आप उन्होंने जो काम किया है उससे बहुत खुश हैं आप भी यहाँ पे वोटर हैं। बताइए व्हाट इज द एक्सपीरियंस बिन? इन्होंने बताया कि यहाँ की जो एमपी हैं वो बहुत अवेलेबल हैं, कभी भी कुछ भी बात करना होता है लोगों से वो सॉल्व कर देती हैं इमीडिएटली। आपको भी वैसा ही लगता है? देखिए, ये एकदम ये सही भी कह रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस जनपद की जो सांसद महोदया है वो बेजुबानों की बड़ी रक्षा करती हैं और हमारे जनपद में विकास बेनतहा हुआ है, विकास बहुत बेनतहा हुआ है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस जनपद की ऐसी सांसद हो जहां पर मेरे नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करावें। बेजुबानों, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बेजुबानों की ये सहायता कराती हैं। हम लोग गौरक्षा वाहिनी से हैं और मैं गौरक्षा वाहिनी का जिला महामंत्री हूं और हमेशा हम लोग जब कहीं गौ माता चोटिल होती हैं, नंदी बाबा चोटिल होते हैं, तो हम जब भी माता जी को या सांसद महोदया को याद किए हैं, जिस प्रकार से याद किए हैं वो हमेशा मेरे साथ रही हैं और हम ये प्रयास करते हैं हम उसी की मदद करेंगे, उसी को वोटिंग करेंगे जो बेजुबानों की सुरक्षा करे, बेजुबानों की रक्षा करे। आपको क्या लगता है यहाँ पे उनको टक्कर कौन देगा? सपा या बसपा, बीएसपी, एसपी दोनों है, यहाँ से कौन लगता है टक्कर देगी उनको? कि आपको लगता है कि उन्होंने जैसा काम किया है उससे लोग खुश हैं? देखिए, सांसद जी के काम पूरे 543 लोकसभा क्षेत्र में सांसदों के क्या अधिकार रहेगा ये सबने देख लिया है। मोदी जी ने जिस तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण किया है अपने हाथ में, उससे किसी सांसद के पास उस तरह के अधिकारी नहीं रहे। माननीय सांसद जी 9 बार की सांसद हैं, सबसे बड़ी सांसद हैं, लेकिन पूर्व मंत्री रही हैं। अब सोचिए, इतनी योग्य व्यक्ति को अगर कोई मंत्री नहीं बना रहा तो इसका मतलब है कि सुल्तानपुर को तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो ये जनता के साथ मोदी जी ने जो छलावा किया है उसका नुकसान कहीं माननीय सांसद जी न पाए, ये हमको देखना है, क्योंकि उनको मंत्री बनना था। एक योग्य व्यक्ति को आप जो है इस तरह से जो है खाली सांसद बना छोड़ दिए। तो लोग मेनका गांधी जी से खुश हैं, लेकिन अगर कुछ नाराजगी होगी तो मोदी जी योगी जी के खिलाफ होगा, उनके खिलाफ नहीं है कोई नाराजगी। देखिए, मेनका जी खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये चुनाव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को लेके है, ये चुनाव राष्ट्रीय नीतियों को लेके है, ये चुनाव संविधान को बचाने को लेके है, ये चुनाव व्यक्तिगत सांसद की उपलब्धि या उसकी अनुपलब्धि को लेके नहीं है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इस समय संविधान बचाने, बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरीके का भयंकर भ्रष्टाचार हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड, नोटबंदी से लेके आप कोरोना वैक्सीन तक देखें, उसके लिए ये चुनाव है। जनता जाग रही है और सांसद जी अपनी जगह, सांसद का कोई रोल ही नहीं है, किसी सांसद का कोई रोल नहीं। बता दें सांसद जी यहाँ कौन सी फैक्ट्री एक तो वो चल रही है। आपके लिए मेन मुद्दा रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी जो आप कह रहे हैं, आपके लिए क्या मेन मुद्दा रहेगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब आप वोट डालेंगे? उन्होंने कहा कि यहाँ के सांसद कौन है वो देखेंगे, या आप देखेंगे कि बेरोजगारी बढ़ रही है या फिर प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? क्या सोच के वोट डालेंगे? बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो बेरोजगारी बढ़ कहाँ रही है? बेरोजगारी घट रही है, बेरोजगारी घट रही है। हम लोग मेनका गांधी के कमल के फूल पर ही वोट डालेंगे। खुश हैं जो काम किया है उससे खुश हैं। तो ऐसा है कि आप यहाँ पे जब वोट डालेंगे बेरोजगारी देख के करेंगे, यहाँ के एमपी को देखते हुए करेंगे, या फिर यहाँ प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए देश में वो सोच के वोट करेंगे? जैसे कि यहाँ की जो सांसद हमारी माँ मेनका गांधी जी हैं, बहुत अच्छी सांसद हैं। जिले में ऐसा सांसद अभी तक न मिला है, न मिलेगा। बहुत सारे लोग सांसद हुए, पूर्व सांसद ताहिर खान जी हैं, क्या हुआ था यहाँ? कुछ नहीं हुआ था। वरुण गांधी जी आए, 5 साल में अपनी सेवा दिए, लेकिन जो हमारी सांसद मेनका गांधी जी हैं जो 70 साल की ऊपर एज हैं, जितनी मेहनत कर रही हैं, वाकई में से कोई सांसद नहीं मिलेगा सुल्तानपुर के लिए। आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है? आप भी यहाँ के वोटर हैं, आपको लगता है कि सांसद जी ने अच्छा काम किया है? क्या सोच के वोट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, काम अच्छा किया है। अच्छा, तो लोग उनके पास कुछ शिकायतें लेके जाते हैं तो फिर वो हमेशा सॉल्व करते हैं। जब आप वोट करते हैं तो यहाँ पे अपनी बात सोच के या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात सोच के वोट करते हैं, या देश में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए वो देख के वोट करते हैं? हमारी सांसद जीते, दिल्ली में जाके मोदी सरकार बने। मोदी की सरकार तो खुश है जो काम बन गया है। तो यहाँ पे लेकिन मेन मुद्दे क्या है अगर आप उसकी बात करें तो यहाँ के जो सांसद हैं वो, या राम मंदिर, बेरोजगारी, क्या सोच के आप वोट करेंगे? नेता चुनना है इस समय, यहाँ का नेता। हाँ। यहाँ जो है मेनका के अलावा नेता कोई लड़ नहीं रहा है। कोई गोरखपुर नेपाल बॉर्डर से आया है
कोई जो है गैस बेचने वाला है, वैसे है, कोई नेता कार्य नहीं लड़ रहे हैं। काम किए, एक हम मांग करते हैं, माता जी काम बहुत किए हैं, विकास बहुत किए हैं सुल्तानपुर में। तो उनको देके वोट डालेंगे? हाँ, चुनाव जीत चुके हैं। माननीय हम लोग माता जी को यहाँ से जिता के भेज रहे हैं, लेकिन हम मोदी जी से मांग करते हैं कि माता जी को मंत्री बनाया जाए, उनके साथ आपके सुल्तानपुर के साथ गलत ना किया जाए। लगता है उनको अभी तक मंत्री जी नहीं बनाया है, अभी तक आपने कहा, क्यों? आपको क्या लगता है कि कारण क्या होगा? कारण देखिए, ये कारण तो मोदी जी जाने, लेकिन इतना योग्य अगर नेता को अगर मंत्री नहीं बनाया तो अगली बार हम लोग सोचने पे विवश होंगे। अब की हम लोग मेनका जी को जिता के भिजवा रहे हैं, अगली बार इस बार मेनका जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को अच्छे से अच्छा मंत्री बनाना चाहिए, ये सुल्तानपुर की मांग है। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे? बस भाजपा जीत रही है। भाजपा जीत रही है, तो मेनका गांधी जी की वजह से जीत रही है, या आपको लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया है या योगी जी ने जो काम किया है उसके वजह से जीत रही है? नहीं, मेनका जी यहाँ पे लगातार 5 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं। अभी तक जितने भी सांसद जीते हैं उतना कोई नहीं काम किया। दिल्ली रहने वाली महिला यहाँ हर महीने में 3 बार दो बार आके रहती है। जनता दरबार लगता है, परमानेंट सबका कार सुनती है, उनसे अच्छा कोई सांसद नहीं है। In here, as we spoke, most of the voters have been saying that the BJP is very, very strong. Let's try to go across slightly in the front as well to find out whether this is just one group of people who believe that the BJP has done well or not. There are several factors. Some who say that Menaka Gandhi has done well and that's the reason why we are voting for the BJP. So it's the Menaka Gandhi factor. यहाँ की जो MP है मेनका गांधी जी, वो लोगों से बात करती हैं, संपर्क में रहती हैं। आपको लगता है कि जो नाराजगी है वो प्रधानमंत्री या सेंटर की तरफ है, यहाँ की जो सांसद है उनके खिलाफ इतना? नहीं, सांसद जी तो बढ़िया काम कर ही रही हैं, लेकिन उनके जो चाऊ माऊ हैं, उन्हें वो लोग जो है काम सही नहीं होने देते हैं ना। हमको ये दिक्कत है। हम पार्टी वोटी से नहीं है, हम एक शुद्ध किसान हैं, हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। किसान की असली लड़ाई है, फसल किसान का चटकर दे रहे, पशु जो है आए दिन जो है गाड़ी कमाई भुखमरी की कगार पे है किसान। और गांव में विकास कहाँ हो रहा है? छोटे छोटे मुद्दे देख लीजिए, हम ज्यादा मेन मुद्दे हैं वही आपके लिए रहेंगे एज अ वोटर। आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा सांसद जी बढ़िया काम कर रही हैं और वो जीतेंगी, बढ़िया वोटों जीतेंगी। अच्छा, आपको भी वही लगता है? हाँ, बस सांसद जी जीत जाएंगे। क्या मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ? अरे मुद्दे विकास का मुद्दा है, हमारे यहाँ विकास का मुद्दा है। कानून व्यवस्था बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है, कोई अपराधी सर उठा के नहीं चल रहा है, बहुत बढ़िया प्रशासन चल रहा है। आपको भी वही लगता है? हाँ, भाजपा, हमको भाजपा से मतलब है बस। तो मतलब मेनका गांधी जी की राम लहर देख के वोट करेंगे कि मोदी जी को प्रधानमंत्री? राम लहर, राम के नाम पे वोट, चाहे काम हो चाहे ना हो, राम के नाम पे वोट। का काम भी बढ़िया है, फ्री में अनाज मिल रहा है सबको, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो आवास मिल रहा है, मैडम कोई जो है इसमें कमी नहीं है। There you heard it from the voters here as well. Debate that has been started off with what are the issues that they are voting for. Many saying that the MP has done work. Many of the voters saying that the Ram Mandir has been built. 370 has been abrogated. The national issues take precedence here. For many, of course, is the work that the MP has done versus the unemployment that they have been speaking of and wanting a change as well. You heard it from the voters, and this is the pulse of Sultanpur. But it's time for us to bid adieu to the Lucknow city as well as this session of the Times Now's election yatra. A big shout out to those who have been behind the cameras working with us, video journalists Manish, Sahil as well as Sanjay Ranjit, from Raju, Anis and Prithvi from PCR. There are several others here that you're seeing. Kabir from the guest team, our producer Rohit, Akhil, Ranga, many others that you've not seen who are bringing this show together to ensure that you've seen the pulse on the ground.